Hi everyone, welcome to another episode of Monday Motivation by Naren. We have very special guest with us. You guys know him probably. His name is Mr. Vipin. Hi Vipin, thanks for being on my show. Thank you so much, Naren. So he's my dear friend. We recently met in Kasol and we come up with this idea of making an interview because I think आपकी story काफी inspiring है. Because I will just give you a brief. He started his journey as a security guard. Yeah, the first job was as a security guard in Bangkok or the ATM. And now he's a multimillionaire and a very successful person running his business in India, across India, in abroad countries also. I think you are working in which major countries? So we are working all over the world, but we have got branches in New Zealand, we have got branch in Dubai, and we are about to start in Germany as well now. So आपको पता चल सकता है कि starting from scratch he built everything on his own and being in a like multi I can't say मतलब बहुत ही बड़ी achievement है. So I would like Mr. Vipin to introduce himself and tell us that कैसे start हुआ and क्या companies हैं आपकी. Okay, first of all, Naren, thank you so much. And as I said before, I'm so sorry guys. I'm not very good in terms of cameras. I don't know कि मैं किसको देख के बात करूँ. So just little confused. So please ignore that. And as I said before, I'm not very used to this. Okay, so coming to me, my name is Vipin Tiwari, and I'm actually from MP. I was born in a small town called Riva, which people would probably don't know about. Don't it. know much, yeah. It's like 100 kilometers from Prayagraj, and I came to Delhi in 2008. Okay. And let me also tell you that I got fail in my 10th class. Yes. And after that, I have not gone to a regular school or college. I'm just a dropout. But I did my 10th from open school and I did my 12th also from open school. बाद में. So, हाँ मतलब so 10th फेल होने के बाद एमपी से मैं दिल्ली आ गया. पहले मैं दिल्ली नहीं आना चाहता था बिकॉज ऑनेस्टली टेलिंग यू मुझे दिल्ली कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पसंद थी. आई यूज्ड टू लिव विद माय ग्रैंड पेरेंट्स देयर. बट देन जब आप फेल हो जाते हो आपके सारे फ्रेंड्स एंड नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं. यू डोंट फील लाइक गोइंग टू सेम स्कूल अगेन. सो आई डिसाइडेड दैट आई कम टू दिल्ली. मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रह रहे थे. तो आई कॉल्ड देम एंड आई टोल्ड देम दैट आई वांट टू कम टू दिल्ली. But just Naren ने बताया that I belong to very low middle class. I mean हम लोगों के पास लैंड तो काफ़ी थी बट as such कुछ खास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था वहाँ पे. एंड जब यहाँ दिल्ली आया तो पता चला ऑलरेडी दैट फादर इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेरी ग्रेट. आई मीन ही वॉज इन टू स्मॉल बेसिक जॉब एंड घर का रेंट होता था. छोटे भाई बहन के स्कूल इनकी फीस और रहती थी. सो आई थॉट कि आई शुड डू समथिंग. सो पहले तो मैंने स्कूल में एडमिशन्स का ट्राई किया बट एडमिशन्स कहीं पे हो नहीं रहे थे बिकॉज मैं 10th फेल होकर के आया था. एंड सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज दैट कि माई लैंग्वेज. तो जिस स्कूल से मैं पास आउट हूँ वहाँ पे 6th क्लास में ABCD सीखने को मिलती है. सो बाय द टाइम आई रीच 10th मुझे कुछ मतलब आई कुड हार्डली स्पीक अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश. तो उस वजह से एडमिशन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. तो आई डिसाइडेड नहीं यार आई कंटिन्यू विद ओपन नाउ. सो मैंने 10th ओपन से पास किया, 12th ओपन से पास किया. तो अब साफ सी बात है लाइक यूजली क्या होता है दैट यू डोंट गो टू स्कूल. तो मेरे पास हफ्ते में 6 दिन खाली होते थे. आई हैड नथिंग टू डू. सो देन आई थॉट क्या किया जाए. सो आई वांटेड टू लुक फॉर अ जॉब बट द प्रॉब्लम वाज दैट दैट 17 years old guy उसे कौन जॉब देगा. एंड द पर्सन वाज नॉट इवन 10th पास, डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड ऑल. सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर बेसिक जॉब्स. So the first job which I got, I actually lied, I'm sorry, I shouldn't tell that, but I told them that I'm 18 years old and I started working in Bank of Baroda ATM as a security guard, जहाँ पे मैं नाइट में जॉब करता था और डे में घर आ जाता था और मतलब दिन में सोता था, थोड़ा बहुत पढ़ता था. That's what I used to do. उसके बाद बहुत सारी वैसी छोटी छोटी जॉब्स की. वहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 9 months काम किया. उसके बाद आई वर्क विद वन आयुर्वेदिक स्टोर विच वॉज ऑल्सो इन रोहिणी. वहाँ पे क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ प्लस पॉइंट ये होता है कि उसमें ना मेडिसिन के नाम हिंदी में लिखे रहते हैं. तो मैं वो पढ़ सकता था. वेर इंग्लिश में मेरे साथ प्रॉब्लम थी, आई कुड रीड इट. तो वहाँ पे कुछ महीने काम किया, फिर मज़ा नहीं आया. देन आई लेफ्ट दैट जॉब. फिर मैंने HDFC बैंक के DSA के लिए काम किया. कुछ मैंने वहाँ काम किया, अच्छा नहीं लगा. फिर मैंने आदित्य बिरला के जो मोर मेगा स्टोर्स होते हैं इसमें अगेन सिक्योरिटी गार्ड जॉब करने स्टार्ट कर दी राजेंद्र प्लेस में.
From there, my life actually, took a turn. वहाँ पे I met one guy. I would like to tell his name. His name is Wilfred Pinto. Okay. He's one of the best person I've ever come across. तो मैं शटर ओपन कर रहा था and I was late by 10 minutes. He said, buddy, you're late. I said, yeah, boss, just 10 minutes, because he was a regular customer. Then he asked me, you look quite young. Why do you work as a security guard? So I said, अभी भी मैंने 12th के एग्ज़ाम अब दिए हैं. So I can't get any better job. So then he told me कि you should come and meet me at Illingworth. So let me tell you that Illingworth is one language institute जहाँ पे मैं गया. तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या है and all that. So I met him. इसकी वजह से मैं Illingworth चला गया. तो उन्होंने पहले they take interviews and they take one small test. जब उन्होंने टेस्ट लिया तो since I didn't know anything in English, तो मेरा लेवल बहुत ही the first one was basic. That time उसका नाम था 1A. So उन्होंने मुझे बोला कि लोग विपिन, मैं तुम्हें मार्केटिंग एंड ऑल में, मतलब तुम्हें फ्रंट ऑफिस में जॉब तो नहीं दे सकता, बट व्हाट आई विल डू, आई विल ऑफर यू जॉब एट जस्ट मार्केटिंग है. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा होता था और मैं लोगों को लीफलेट बांटता था. और मैंने इंग्लिश के 2 वर्ड सीखे थे, कैन आई टेक यू 2 मिनट्स प्लीज, आई एम फ्रॉम इलिंगो. उससे लोग सुन लेते थे. तो उनको लीफलेट्स देता था. एंड दिस इज स्टोरी ऑफ आई थिंक नाउ 2011 probably or 2012. उस टाइम पे लोगों को ना इंग्लिश सीखने का क्रेज भी काफ़ी ज़्यादा था. सो मैं डेली 100 लोगों को बोलता था. 100 में से लगभग 50-60 लोग लीफलेट लेते थे. उसमें से 15-20 लोग मेरी बात सुनते थे. और उसमें से 5-7 लोग मेरे साथ सेंटर तक वॉक करके आ जाते थे. और उसमें से कुछ लोग एडमिशन्स भी करा लेते थे. आई वाज डूइंग प्रीटी गुड. तो कुछ टाइम वहाँ पे काम किया मैंने. फिर दे स्टार्टेड टीचिंग मी इंग्लिश एज वेल साथ साथ. तो दैट्स हाउ वट एवर आई लर्न फ्रॉम देयर ओनली. एंड मैंने वहाँ पे 17-18 महीने जॉब किया. बट अब मतलब आई स्टार्टेड विद 4,500 और मुझे 9,500 मिलने लग गई थी सैलरी. बट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे वो लाइफ नहीं जीनी थी जो लाइफ चल रही थी. सो देन आई स्विच्ड ओवर. वन डे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई वहाँ पे किसी के साथ. तो आई डिसाइडेड टू रिज़ाइन. एंड उसके बाद आई वेंट टू वन इंटरनेशनल BPO. बट लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था वहाँ पे. तो मैंने वहाँ 20 दिन काम किया. तो 10 दिन की तो ट्रेनिंग थी. 10 दिन बाद जब फ्लोर पे आया तो समझ में आया कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई कैन डू. मतलब रात भर जगना, दिन भर सोना, मतलब आई डिडंट हैव एनी पर्सनल लाइफ. सो आई लेफ्ट दैट जॉब फ्रॉम देयर ऑल्सो. And then I worked with Shine.com, जो कि ST मीडिया का पार्ट है. वो करने के बाद वहाँ मैंने कुछ महीने काम किए. I was doing good, but again I was not very satisfied with it. So I left that job from there and I worked. I joined Naukri.com. मैंने वहाँ भी लगभग 1 से 1.5 साल काम किया. 1.5 साल अप्रॉक्सीमेटली. फिर वहाँ से विकेट कर दिया. लेट मी टेल यू, हर बार जॉब छोड़ने का रीज़न सिर्फ यही होता था दैट कि मुझे कुछ और एक्साइटिंग, कुछ और अच्छा चाहिए था. तो आई लेफ्ट इट एंड देन आई गॉट माई पासपोर्ट एंड ऑल डन एंड आई लेफ्ट फॉर दुबई. अच्छा, तो ये मतलब फैसला लिया कैसे? ये फैसला लेने का रीज़न ये था कि अब मतलब मेरी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे 20,000 रुपये थी. 10,000 इंसेंटिव्स आते थे. 30,000 महीने का मैं कमाता था. एंड आई एम सो सॉरी, आई एम मेंशनिंग दी सैलरी अमाउंट अगेन. उसका रीज़न है कि आई वांट यू टू नो कि एग्जैक्टली कैसे वो जर्नी राइट स्टार्ट से. सो ऑनेस्टली टेलिंग यू, 30,000 में भी लाइफ मेरी बहुत बुरी नहीं चल रही थी. इट वाज हैप्पी. बट आई डिसाइडेड वन थिंग कि यार विपिन, ये तो हमेशा चलता रहेगा. एंड मुझे इतना पता था कि जिस तरह की मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको छोड़ भी दिया, आई कैन probably after 4-5 months or down the line, 6 months or a year, I can get another similar job. So इसीलिए I left it and I took a risk. मैंने थोड़ा सा बैंक से पर्सनल लोन लिया. ज़्यादा तो मिला नहीं, 1.5 लाख आसपास लोन मिला था और मेरे पास 40-50 हज़ार की सेविंग्स थी. I took it. I went to Dubai. I started looking for a job. पहली बार जॉब मिली 10 दिन में. एक रियल एस्टेट कंपनी में मैं और मेरे एक फ्रेंड गए थे. 10 दिन में जॉब मिली. बट आई वर्क फॉर 20 days and they said they'll send me visas and all, but they did not send. तो I left my luggage and all. I thought they would send me, but उन्होंने वीज़ा नहीं सेंड किया. So I came back to India. I was waiting for visa. 20 days हो गए but वीज़ा नहीं आया. They were not answering calls and all. So I decided to go back. बट जब जॉब मिल गई थी तो पैसे तो सारे खर्च कर दिए थे कि ठीक है अब तो सैलरी आएगी. सो सेकेंड टाइम जाना था. हम 2 फ्रेंड गए थे, लेकिन अब इतना ही बजट था कि हम एक जा सकता था. अच्छा. सो आई डिसाइडेड टू गो अलोन. आई टोल्ड माई फ्रेंड टू वेट. आई वेंट देयर. आई फाउंड अ जॉब दिस टाइम, अ गुड जॉब. बट वो मुझे मिली मेरे वीज़ा एक्सपायर होने से 5 दिन पहले.
Okay. So that person told me that, Vipin, I would love to hire you, but you have to come and clear the training, which was for 10 days. Which basically means I had to leave a country again and I had to go back. तो मैं फिर से इंडिया आया. फिर एक फ्रेंड मेरा है who also happens to be one of the director in my company, उससे मैंने 50,000 rupees लिया and I said I want to go back again and he gave me 50,000 bucks. मैं दोबारा दुबई गया. I got a job into similar industry what I'm doing right now. They were also a distributor of electronic components. I worked there for almost 1.5 year. लाइफ अच्छी चल रही थी, अब ठीक ठाक सेल्स कर रहा था, सब कुछ अच्छा था. बट एज अ सेड कि मुझे कुछ डिफरेंट लाइफ में चाहिए था. आई वांटेड टू हैव समथिंग ऑफ माय ओन. सो आई डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया एंड यहाँ के 2016 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया. सॉरी, आई थिंक बहुत ज़्यादा बोल गया मैं. नहीं ठीक है. तो अब आप उसके बारे में लाइक यू कैन आस्क कुछ भी पूछना चाहते हो. तो 2016 में स्टार्टेड दिस फर्स्ट कंपनी. This first company named as? So this company name is APVM Electronics, and let me tell you, we started this company with just 1 lakh rupees back in 2016, and currently APVM Electronics की 3 branches हैं, and चौथी बहुत जल्दी ओपन हो जाएगी. In 4.5 years now, we are 75 crore company From 1 lakh. From 1 lakh. So before we go ahead, I would like to tell you that this video is brought to you by CoinSwitch Kuber, which is a crypto trading platform in India. With a changing world, everyone is into investments, and I want my audience to understand cryptocurrencies, to understand where to invest, how to invest, why to invest. उसके लिए CoinSwitch Kuber blogs भी बनाता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. You can go read the blogs, understand the market, analyze them, and invest accordingly. To invest, come on this platform of CoinSwitch, which is very user friendly. आराम से यूज़ कर सकते हो. बहुत जैसे ऑर्डर करने जितना आसान है. You just deposit some cash and then you go place the order of multiple crypto coins which are there, Bitcoin, Ethereum, बहुत सारे. So make sure check out the link in the description. ट्रेड कर बेफिक्र. और एक और बात, हाँ, डाउनलोड द ऐप यूजिंग माई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट 50 रुपीज़ ऑफ फ्री बिटकॉइन. ऑलराइट, चीज. अब ये वीडियो को आगे कैरी करते हैं. या And we are 4 friends जिन्होंने start किया है company. I would like to tell you the name also of APVM. So, stand for Amit, P stand for Pankaj, we stand for Vipin, and we stand for Mukesh. So that's the APVM Electronics. nice. Other than this, I've got 3 more companies. One is ST Textile, wherein we manufacture uniforms and jacket for the Indian Army. Nice. And one more company name is Technologist Technical Services Limited, जहाँ पे हम लोग इंडियन आर्मी को रेडार, एंटीनाज, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और आर्मी से रिलेटेड प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं. एक और स्टार्टअप पे मैं भी वर्क कर रहा हूँ जिसका नाम है देसी विक्रेता, which will be e-commerce company which you'll hear about in next few months in a market. Nice. And there will be some big project which is coming up. Nice. So this is what. काफ़ी मतलब ये जर्नी से मेरा पहला क्वेश्चन है कि हाउ यू वेर गेटिंग द कॉन्फिडेंट टू जगल बिटवीन जॉब्स, कि एक छोड़ देंगे दूसरा मिल जाएगा. वो बिलीव खुद पे कैसे आ रहा था? ओके, बिलीव के 2 रीज़न थे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल यू, मतलब पहली चीज़ ये था कि यार आई वाज नॉट हैप्पी. मतलब जो लाइफ में जी रहा था, मेरा सिर्फ आज भी सिर्फ एक ही टारगेट है. मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा माई टुमारो शुड बी बेटर देन टुडे. मैंने आज जो भी किया कल इससे अच्छा होना चाहिए. ये हमेशा से था मुझे कि मुझे मेरा कल हमेशा अच्छा होना चाहिए. जॉब छोड़ने के पीछे रीज़न ये होता था यार कि आई न्यू कि मैं कुछ इससे अच्छा कर सकता हूँ. पहली बात सेल्फ कॉन्फिडेंस. दूसरा क्या होता है दैट यू नो आई डिड नॉट हैव मच थिंग टू लूज. Like when I was getting salary of 10,000 or 15,000 a month, I knew कि मैं ऐसी जॉब मुझे मिल सकती है आसानी से. When for example let's say आप 3 लाख रुपए महीने का कमाते हो तो आपकी सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उस हिसाब से होती है कि अगर आपने जॉब छोड़ा फॉर एग्जांपल 6 मंथ तो आप यू लूज अराउंड 15-20 lakhs. बट मेरे साथ ऐसा नहीं था. तो आई मीन आई हैड अ कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्क. मैं रिस्क ले सकता था. प्लस आई हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस. मुझे पता था यार कि आई नो आई कैन डू इट. So that was the point majorly. Nice. So during this period of time when you came to India, so you had some savings with you which you made in Dubai, or how you thought of coming to India and then starting your own company? Okay, so you know honestly savings तो मेरे पास ज़्यादा नहीं थी because दुबई में ना कुछ खास सैलरी नहीं थी हमारी. Okay. One reason was that. Second, actually दुबई में ये था, Dubai is quite too expensive. Like you also went to Dubai, you have seen how expensive is it. तो जो सैलरी मिलती थी वो खर्च हो जाती, तो महीने का वो 15-20 हज़ार ही बचता था एट द एंड. तो कुछ खास सेविंग्स नहीं थी. आई थिंक व्हेन आई केम टू इंडिया मेरे पास 2.5 से 3 लाख रुपए ही थे. 1.5 साल में इतना मैं सेव कर पाया था.
So that's the reason we wanted to fly light. तो when we started, हमने काफ़ी छोटा ऑफिस लिया था, एज एन स्मॉल ऑफिस. हम 4 लोग बैठ के काम करते थे, बिकॉज मैं अपने फिक्स एक्सपेंसेस को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था. बट लेट मी टेल यू, व्हेन आई लेफ्ट फ्रॉम दुबई, मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे टू स्टार्ट समथिंग इन दुबई, एज इन दैट स्टार्ट अनदर जॉब. अब मुझे दुबई में अच्छी जॉब मिल सकती थी. मेरे पास ऑलमोस्ट दुबई का लाइसेंस भी आने वाला था. आई हैड अप्लाइड फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, पेड फीस एंड ऑल. आई वाज लर्निंग ड्राइविंग. सो दुबई में व्हेन यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस एंड ऑल, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है थोड़ी सी. सो अब अच्छा टाइम आ रहा था दुबई में, बट मुझे आना था. मेरा ड्रीम कुछ और था, कुछ और स्टार्ट करना. दुबई में बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट किया? बिकॉज दुबई में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी यूज़ होती हैं बिजनेसेस के. एटलीस्ट बेयर मिनिमम यू नीड टू इन्वेस्ट अराउंड 15 to 20 lakhs. और यहाँ पे मैंने 1 लाख में स्टार्ट किया. ओके, सो व्हेन यू स्टार्टेड और कंपनी हियर, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस? कि इंडिया में कैसा टाइम था उस टाइम? ओके, हमारे पास चैलेंजेस जो सबसे ज़्यादा फेस हो रहे थे, पहली बात एज सच इस एरिया में लाइक पीपल वर नॉट डूइंग एग्जैक्टली जो हमारा बिजनेस था. ओके, तो हमें फॉर एग्जांपल अच्छी क्वालिटी के लोग नहीं मिल पाते थे. लाइक हम कोई भी कंपोनेंट शिप करने से पहले हम उसकी क्वालिटी टेस्ट करते हैं. तो हमें क्वालिटी चेक करने वाला कोई क्वालिटी इंजीनियर नहीं मिल रहा था कंपोनेंट्स की. सेकेंड प्रॉब्लम वाज दैट कि जो मशीनरी फॉर एग्जांपल अभी हम यूज़ करते हैं, लाइक आई बॉट देम फॉर 30-40 lakhs. उस टाइम हमारे पास बजट नहीं था उन सब मशीन को अफोर्ड करने का. तो एक चैलेंज वो था कि दैट हम पार्ट्स को टेस्ट नहीं कर पाते थे. फिर ऐसे लोग ढूंढना मुश्किल था जो कि इस इंडस्ट्री से थे, एज इन बिकॉज हमारा एक बहुत छोटा सा स्टार्टअप था, बहुत छोटा सा ऑफिस था. तो जब आप फॉर एग्जांपल जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो तो हमें जानते भी नहीं. लाइक दे आर अराउंड $20-30 billion कंपनी. तो जो उनके यहाँ पे काम कर रहा है ना, ही विल नॉट लाइक टू वर्क विद स्मॉल स्टार्टअप. तो लाइक हमें ऑलमोस्ट 9 महीने तक हम 4 लोगों ने काम किया. ऑफिस का भी सारा काम खुद करते थे, इंक्लूडिंग क्लीनिंग, एवरीथिंग हम खुद ही करते थे. शिपमेंट पैक करना, ट्रैक करना, कई बार एयरपोर्ट से शिपमेंट लेकर के आना, कई बार एयरपोर्ट शिपमेंट ड्रॉप करने जाना, जो शिपमेंट्स होती हैं. तो हमें 1 साल तक सारा का सारा काम खुद करना पड़ा, जो मेजर चैलेंज हम लोगों के पास आता था मैन पावर का. तो आपने वैसे खुद से 4 लोग बहुत जी जान लगा के. सो कितने टाइम लगा फिर आप एक नए ऑफिस में एक्सपैंड कर पाए खुद को? हमने आई थिंक 13 months में ही बड़ा ऑफिस ले लिया. हमें अब इसकी कैपेसिटी अराउंड 28-29 लोगों की है. उस वाले की सिर्फ 6 to 7 थी. ओके. सो अपग्रेड आई लाइफ में. सो हाँ. और अब बहुत जल्दी और बढ़ा लेंगे बिकॉज अभी छोटा पड़ रहा है ऑफिस है, कि एम्प्लॉय ज़्यादा हो रहे हैं, तो मोर बिग स्पेस. Okay. So when you started making good income or revenue from your company, then how was the thought of getting new branches? कहीं और भी खोलते हैं. Then how did these thoughts come into your mind? So as I said, हमेशा से मेरे ड्रीम्स काफ़ी बड़े थे. एंड एज आई सेड कि मैं हमेशा ही चाहता था दैट आई इनफैक्ट राइट नाउ आल्सो आई ऑलवेज वांट कि मेरा कल मेरे आज से अच्छा. मेरा सिंपल से ही टारगेट होता है कि मैंने आज जो भी किया कल इससे अच्छा होना चाहिए. सो ऑब्वियसली now the plan is that not just in these 4 countries, my plan is to have a branch in almost all the major countries in the world. Okay. So that's the vision, that is the target which we have in our mind. And coming back to your question कि हमें लगा दैट हमें कुछ लाइक सो अभी करेंटली वी बाय फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम हर मेजर कंट्री से बाय करते हैं एंड वी ऑलरेडी एक्सपोर्ट टू ऑलमोस्ट 46 or 47 कंट्रीज ऑलरेडी. सो इट बी रियली ईजी. फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करना होता है तो मेरे लिए न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करना काफ़ी ईजी रहता है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाइना एक्सपोर्ट करना है या पाकिस्तान में हम एक्सपोर्ट करते हैं बाय द वे, तो थ्रू इंडिया तो पाकिस्तान ही भेज सकते हैं हम. बट बाय दुबई इज क्वाइट इजी. सो हम दुबई से एक्सपोर्ट करते हैं. गल्फ कंट्रीज को बेचना हो तो हम दुबई से बेचते हैं. जर्मनी से मैं यूरोप को ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाऊंगा. देन आफ्टर जर्मनी नेक्स्ट वुड बी यूएस. यूएस में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में, तो हम थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा स्टार्ट करें यूएस में. सो आर वेटिंग फॉर लिटिल मोर टाइम, बट जर्मनी डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट. Okay. So during this period of expanding and making money, so how were you in terms of investing? Where was your
funds going, your own savings going on? Okay, so as I said initially, जब मैंने start किया था, since I'm not much into, not very educated person I would say, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था initially कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे रियल एस्टेट सबसे अच्छा ऑप्शन लगता था पहले. So I started with real estates. उसके साथ साथ कुछ SIPs, कुछ म्यूचुअल फंड्स, और कुछ टाइम से आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू क्रिप्टो करेंसीज. एंड इन फैक्ट मेरा प्लान है टू लॉन्च माय ओन क्रिप्टो करेंसीज वेरी सून. Nice, that is something to look upon. तो मतलब for the youths watching this video, so you would suggest them to start investing, saving money, because अभी वर्ल्ड ऐसे एक्सपैंड कर रहा है, 16 साल में लोग मिलियनर बन जा रहे हैं. Everyone are trying to get the best and do the best by their own potential. So what's the suggestion you have for the youths watching this video? Okay, first of all जो मेरा सिंपल सजेशन, इनफैक्ट जो मेरे फादर बहुत टाइम से मुझे बोलते थे कि हम जो भी अर्न करते हैं, पहले एक बेसिक रूल बनाओ, आप जो भी अर्न करते हो एटलीस्ट उसका 20% बे मिनिमम तो आप हर महीने सेव करोगे. डज नॉट मैटर कैसे कर रहे हो आप. हैव वन सेपरेट बैंक अकाउंट जहाँ पे अपनी सैलरी आते के साथ ही 20% ट्रांसफर कर दो. फिर उस 20% को भी यू हैव टू इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स. राइट. ओके, अब इन्वेस्टमेंट जब आ जाता है तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं दैट आई कैन नॉट डायरेक्टली जस्ट गो एंड टेल यू दैट कि इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, बट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग. फॉर एग्जांपल जब क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में स्टार्ट हुआ था, अगर उस टाइम पे हमने इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज के डेट में हम सबके सब बिलीनियर्स होते हैं. राइट. तो मैं नहीं चाहता कि हमारी आने वाली जनरेशन हमें बोले काश मेरे फादर ने कुछ एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइंस खरीद लिए होते तो आज हम मल्टीप्लेनर्स होते हैं. सो डोंट लेट दैट थिंग हैपन. आई एम नॉट सेइंग बाय बिटकॉइंस, बट आई एम जस्ट सेइंग जस्ट बी ओपन. अगर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, अगर आपको सही लग रहा है, आपके पास कुछ एक्सेस में फंड्स पड़े हुए हैं जिसको आपको इमीडिएट नीड नहीं है, डू इन्वेस्ट इट. और रियल एस्टेट इज ऑल्सो वन ऑप्शन, बिकॉज आपको पता है कुछ भी हो जाए इंडिया में एटलीस्ट आपको रियल एस्टेट 10% के आसपास तो मिनिमम रिटर्न देता ही देता है, और काफ़ी सेफ ऑप्शन रहता है. कुछ एरियो में तो 20 to 30% पे है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो. सो सी योर बजट, आप देखो कहाँ आप कर सकते हो. बट एज आई ऑलवेज रिकमेंड कि कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट मत करना यार. पता चले कि अगर आपको लोन लेना पड़ रहा है तो फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट है ही नहीं यार. डोंट टेक इट. इन्वेस्टमेंट हमेशा उस पैसे की जाती है जो आपके पास एक्सेस में पड़ा हो. अभी नहीं कि आपने पर्सनल लोन लिया और आपने उसका बिटकॉइन खरीद लिया. डोंट डू दैट. उस अमाउंट को ही करो आप जो कि एग्जैक्टली आपके पास एक्सेस में पड़ा है. अगर इन केस इफ यू लूज दैट अमाउंट ऑल्सो, जिससे आपकी लाइफ में ज़्यादा फर्क ना पड़े. सो डू रिमेंबर दैट फैक्टर. और वो अमाउंट छोटा भी हो जाता है. ऑफ कोर्स यार, अब कुछ भी हो सकता है. लाइक एक पर्सन कुछ भी, आई मीन आप 500 रुपये 1000 रुपये से स्टार्ट करके आप जितना कमाते हो उसके हिसाब से कर सकते हो. अगर आप हर महीने का 1000 रुपये भी करते हो तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी एक सर्टेन पॉइंट के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है. सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, कुछ भी, बट स्टार्ट इट. राइट. तो आई थिंक एक आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि बहुत लोग आई थिंक बहुत टेंशन होता है कि अरे बिटकॉइन खरीदना है तो 20 लाख थोड़े मेरे पास, SIP खोलना है, कुछ भी. तो स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल. राइट. एज यू कैन सी द एग्जांपल, ही स्टार्टेड हिज कंपनी फ्रॉम 1 लाख. अब ये सोचे 10 लाख होगा तो बेटर कंपनी बनेगा, ऐसा सोचे थे कि ज़्यादा पैसा आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे, अभी रुकने देते हैं. अगर मैं ऐसा सोचता कि मुझे दुबई में स्टार्ट करना है, मैं 20 लाख कमा लूँ फिर स्टार्ट करूँगा, तो आज भी मैं जॉब ही कर रहा होता. आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट सेइंग कि जॉब करने वाले लोग बुरे होते हैं, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आई एम जस्ट सेइंग अगर मैं जॉब कर रहा होता तो शायद कुछ और चीज़ें होती, लाइक इट वुड हैव नॉट बीन द सेम. राइट. राइट. अनलेस आई वुड हैव नॉट बीन बिग CEO ऑफ सम बिग कंपनी. तो एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए लाइफ में अकॉर्डिंग टू यू. राइट, डेफिनेटली लेना चाहिए. एक सर्टेन एज भी होती है अगर आपके पास, क्योंकि जो लोग भी देख रहे हैं यूथ है मोस्टली. ओके. तो एक एज तक या फिर कभी भी लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए. तो यार मेरे हिसाब से पता है बिफोर 30 एक बहुत अच्छा टाइम होता है. बिकॉज यूजली आज के डेट मैंने देखा लोग शादी एंड ऑल बाकी सारी चीज़ें 30 के बाद ही करते हैं. सो 30 तक ना आपके पास एक मतलब खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता. आई एम नॉट सेइंग कि लोग शादी के बाद नहीं कर सकते समथिंग लाइक दैट, बट यूजली क्या होता है दैट व्हेन यू गेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब शादी हो गई, वाइफ भी हो सकता है ना, वर्किंग हो, फिर बच्चे भी होंगे, तो आपके पास ना एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है दैट आप हेजिटेट हो जाते हो रिस्क लेने से पहले कि अच्छा यार रिस्क लेना है नहीं लेना है. तो अगर आपने 30 से पहले कुछ अच्छा कर लिया, ट्रस्ट मी आने वाली लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है. लेट मी टेल यू, आई एम जस्ट 28 years old right now. Right now 28 years old multimillionaire.
या आई थिंक आई एम आउट ऑफ माई क्वेश्चंस, क्योंकि आपकी जर्नी काफ़ी फैबुलस है एंड इंस्पायरिंग है, बिकॉज आई थिंक काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज यू कम फ्रॉम अ वेरी लो बैकग्राउंड, एमपी के छोटे से जगह से आते हैं एंड देन नाउ यू आर एक्सपैंडिंग टू वर्ल्ड, so that's a very good thing. Congratulations on that. Thank you so much, Naren. Any end note message for the viewers? End note as a motivation something. यार एक ही चीज़ मैं कहता हूँ हमेशा, ड्रीम बिग, हमेशा बड़ा प्लान करो एंड डू योर बेस्ट। जो भी कर रहे हो, जिस फील्ड में भी कर रहे हो, आई मीन आप जो भी करते हो हमेशा यू नो डू विद अ लॉट ऑफ पैशन एंड यार मुझे ना हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट अब तक नज़र नहीं आया। सो लोग कहते हैं सक्सेस शॉर्ट टर्म्स होती है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रस्ट मी, व्हेन आई स्टार्टेड फॉर 2 years मैं 16 से 17 घंटे काम करता था एंड लेट मी टेल यू, मैं पिछले 2 साल से बिल्कुल काम नहीं करता हूँ। आई जस्ट वर्क ओनली फॉर फ्यू आवर्स अ डे, बट इनिशियली मैंने 2 सालों के लगा दिल्ली से 16 से 17 घंटे काम करता था एंड दैट इज़ द हार्ड वर्क विच इज़ पेइंग मी राइट नाउ। अब मैं कम काम करता हूँ, गुड टीम वाज वर्किंग फॉर मी नाउ, आई ऑल्सो वर्क, आई एम नॉट सेइंग आई डोंट वर्क। तो जो भी करते हो पहली चीज़ बहुत पैशन के साथ करो। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि गिव यू 100%। आप जिस इंडस्ट्री में भी हो, जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप सिंगर हो, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप यू नो एक ब्लॉगर ही क्यों ना हो नरेंद्र भाई के जैसे। एंड बाय द वे ही इज़ अमेजिंग गाय, आई मेट हिम रिसेंटली इन कसौल एंड ही वाज जस्ट वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स आई हैव कम अक्रॉस and that's the reason we are sitting right now together and you know we are having this conversation. So I'm so sorry. Back to your questions. So जो भी आप करते हो please do your best and कभी भी कुछ ऐसा सपोर्ट चाहिए हो तो I think you know you can always ask him. He's a very talented guy too. And कुछ अगर मेरे से कुछ ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपको कुछ पूछना है तो anyways I think he'll LinkedIn and Instagram. LinkedIn, Instagram or something, you can anyways ask me. I'll be more than happy to reply you. Yes. So that's it for the video guys. Thanks a lot for watching. I hope इनकी story आपको inspire करे and then you go start a new company and become billionaire. We wish that because thanks a lot. Thank you so much all for watching and thanks a lot. Thanks Vipin for being on my show. Yeah, that's Monday Motivation episode 2 ending guys. I'll see you guys in the next video. Till then. Bye. Take care. Bye. Cut. Okay, by the way, I myself handle all the cameras 3-4, okay? We don't have assistant right now. So I'm working solo and we will expand to a very big team. So probably the next interview will be like, we'll have a team of 6-7 people.